Hello dear children, this is your teacher Deepak Juneja and you are at the YouTube channel English Kingdom. Today we are going to begin the fourth lesson of the book Vistas. The name of the lesson is The Enemy, which is composed by Pearl S. Buck. So before we begin the lesson, let me take you a Ramayana episode. You must have watched that episode where when Lakshman was injured. So Hanumanji went back to Lanka and brought their Rajvidya Sushen from there. And when Rajvidya Sushen was brought there, he was completely confused what to do, because he was at the enemy camp and he did not know whether to treat Lakshman or not. Because if he treated Lakshman, then it would have been a cheating with his own country. His patriotism would have been at stake. And if he did not help or if he did not treat Lakshman, then it would have been a cheating with his own profession or humanity. That's why he was completely confused. There also the humanity won, and he told the name of the medicine which was lying at that Sanjeevani Booty. He told the name of that medicine, and then Hanumanji went and brought that mountain where that particular Sanjeevani Booty was lying. So here also the same kind of doctor is there. His name is Dr. Sadao Hockey, and he also is in a kind of that dilemma which that Rajvidya Sushen was. And his dilemma is that when American prisoner is before him and he does not know, wounded prisoner is before him and he does not know whether to help him or not. Again the same things are there. If he helps him, it would be a cheating with his own country, but if he does not help him, it would be a cheating with his profession. So let's begin the lesson. We will go with line by line explanation of this lesson. Let's begin. It is the time of the World War. ये World War का समय है. An American prisoner of war, एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार. इसको एग्ज़ाम में POW के नाम से भी कभी दे दिया जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि द फुल फॉर्म ऑफ POW इज़ प्रिजनर ऑफ वार. इज़ वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट. डाइंग स्टेट मीन्स मरने वाली अवस्था में वो. वॉश्ड अशोर मीन्स हैज़ बीन वॉश्ड बाय द सी and is found at the doorstep of a Japanese doctor. And who is this Japanese doctor? This is Japanese doctor is Dr. Sadao. Should he save him as a doctor? उसे डॉक्टर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, या फिर उसे एक देशभक्त के रूप में वापस आर्मी को उसे सुपुर्द करना चाहिए. ये ही इज़ इन अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. Here Dr. Sadao Hockey's house is being talked of, कि उसका जो घर था वो एक जापानीज तट के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ वो कभी कभी बचपन में खेला करता था. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. और ये जो घर था स्क्वायर शेप में था. ये लिखा हुआ आपके स्टोन हाउस. इट वाज मेड ऑफ स्टोन एंड इट वाज सेट अपॉन रॉक्स. रॉक्स के ऊपर बना हुआ था. वेल अबव ए नैरो बीच, और थोड़ा दूर जाकर नीचे की तरफ एक सकड़ा सा बीच था. दैट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स, जिसकी आउटस्कर्ट्स पर यानी बाउंड्रीज पर पाइन्स पेड़ लगे हुए थे. एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट. एक बच्चे के रूप में सदाओ हमेशा उन पाइन्स पर चढ़ा करता था अपने आप को अपने नंगे पैरों से. एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. और ये सब कला पेड़ पर चढ़ने की उसने वेयर had he learnt that particular art. He had seen people climbing on trees at the south seas for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas. उसके पापा कभी कभी उसको उन सीज के आइलैंड्स पर ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और वो हमेशा उस छोटे से बहादुर बच्चे को यानी डॉक्टर सदाओ को कहा करते थे, दोज आइलैंड्स यॉन्डर, कि ये आइलैंड्स तुम्हारे हैं, मीन्स यहाँ हैं. दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. और जापान का फ्यूचर यहीं से निकलेगा. देन द चाइल्ड यूज्ड टू आस्क वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे.
who knows, his father had answered, who can limit our future, it depends on what we make it. So main important line ये है, Dr. Sadao used to motivate his own son. Dr. Sadao's father used to motivate him by saying that it depends on what we make it, means our future is what we make it. हमारा भविष्य वही होता है जो हम बनाते हैं. It means to say everything depends on our own will power. हमारी खुद की will power, determination और hard work पर depend करता है. So as far as this paragraph is concerned here, यहाँ से कोई question तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी you should know that how was Dr. Sadao Hockey brought up. Dr. Sadao Hockey किस तरह से उसका पालन पोषण हुआ था. From here you can lift some of the important value points from here. For example, his house was situated at the Japanese coast, and a narrow beach also was there, which was outlined with bent pines, and he used to climb on the trees. ये सब चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं. Next, go to the next paragraph. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ ने इस बात को अपने दिमाग में घर कर लिया था. कौन सी बात को दिमाग में घर कर लिया था? दिस वन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यानी हमारा फ्यूचर. इट रेफर्स टू फ्यूचर. ये जो इट वर्ड है ये फ्यूचर को रेफर करता है, यानी हमारा फ्यूचर उसी चीज़ पर निर्भर करता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं. इन द सेम वे सदाओ ने उस चीज़ को अपने दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर लिया था. ही हैड फिक्स्ड दैट पर्टिकुलर थिंग इन हिज माइंड. हिज फादर नेवर जॉक्ड और प्लेड विद हिम, बट who spent infinite pains upon him who was his only son. So from here we can extract out something about his father also, that his father was very strict. He never joked. ना तो वो उसके साथ मजाक करते थे, ना खेलते थे, बल्कि उसके ऊपर उसको बहुत इन्फिनिट पेन्स दिया करते थे, यानी बहुत ज़्यादा उसको दर्द दिया करते थे. Who was his only son, जो कि उनका केवल मात्र इकलौता बेटा था. तो being the lonely son, a lone son, he should have got all the facilities or all the love, but it was not in the case of Dr. Sadao. उसके पिताजी जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया करते थे. Sadao knew that his education was his father's chief concern. सदाओ को पता था कि उसके पापा की जो चीफ कंसर्न है उसकी एजुकेशन है. For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learnt of surgery and medicine. And because of that reason only he was sent to America at the age of 22. He was sent to America at the age of 22 to learn all that could be learnt of surgery and medicine, to have the study of surgery and medicine. He had come back at 30. It means to say from here also you have to prepare some of the multiple choice type of question also. For example, when did he go to America? He went to America at the age of 22. And when did he return from there? He returned from America at the age of 30. It means to say he remained almost for 8 years there. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. उसके पिता की मौत से पहले सदाओ न केवल सर्जन बन चुका था बल्कि एक साइंटिस्ट भी था. अच्छा, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. क्योंकि वो एक डिस्कवरी पर काम कर रहा था, लगभग ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन था. जो डिस्कवरी क्या करती थी कि जितने भी घाव हैं उन घावों को पूरी तरह से साफ़ कर देती थी. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप्स, इसीलिए उसे आर्मी के साथ में बाहर नहीं भेजा गया था. बिकॉज तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही कि ही वॉज अ डॉक्टर इन आर्मी, कि वो आर्मी में ही एक डॉक्टर था. एंड ही वॉज नॉट सेंट विद आर्मी, उसे आर्मी के साथ में नहीं भेजा गया. द फर्स्ट रीज़न वॉज दैट he was perfecting a discovery, because he was doing a discovery which would render wounds entirely clean, जो कि घावों को बिल्कुल साफ कर देती थी. And another reason also was there. What was the second reason for him not being sent to with the troops? वो ये था, also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. The second reason was that general was an old person and he was ill also, and he could need any operation any time. And Dr. Sadao was a good surgeon, so he was in a good demand, and that's why he was kept in Japan only. So from here a question may come in the examination ki why was Dr. Sadao not sent with the troops? So two reasons are there. The first reason is that
he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. That's why he was not sent with the troops. And another reason was that the general was an old man and he was ill also, and he could need any operation anytime, and Dr. Sadao was a good surgeon, so he was kept in Japan only. So here we are coming to now his present life when he has got married. जब उसकी शादी हो गई है, clouds were rising from the ocean now. ये आसपास की जो बैकग्राउंड जो पिक्चर है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि आसपास बादल आसमान से ऊपर उठ रहे हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग्स फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. और जो पिछले कुछ दिनों में गर्मी पड़ी है उसके कारण हैवी फॉग हो गया है कोल्ड वेव्स के कारण. Sadao watched mist hides outline of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, reading around the pines. Sadao इस कोहरे को मिस्ट कहते हैं. कोहरे की जो आउटलाइन है जो लिटिल आइलैंड के पास में दिखाई दे रही है उसे देख रहा है और फिर अपने घर के पास में आता है. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. उसे मालूम है कि ये फॉग धीरे धीरे जो है उसके घर के आसपास भी आ जाएगा. देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वो हाना के पास में गया. हिज वाइफ जो उसकी पत्नी थी वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जो इसका इंतज़ार कर रही थी विद द 2 चिल्ड्रन. तो हियर वी हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट डॉक्टर सदाओ इज़ मैरिड टू हाना एंड दे आर हैविंग 2 चिल्ड्रन एज वेल. But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen howry over her kimono. Kimono is a kind of gown, एक गाउन होता है, और हाउरी इज़ अ काइंड ऑफ जैकेट. और उसी क्षण जब when he was thinking about all these things, when he was thinking about mist, जब वो मिस्ट के बारे में सोच ही रहा था, suddenly the door opened, दरवाज़ा खुला और उसके बाहर निकल कर कौन आई? उसकी वाइफ हाना. शी वॉज वेयरिंग ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी. उसने डार्क ब्लू वुलन हाउरी पहनी हुई थी ओवर हर किमोनो. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम as he stood, smiled and said nothing. He had met Hana in America. From here a question may be developed. The question is that how did Dr. Sadao meet Hana? So here we will be getting the ideas from. He had met Hana in America. वो हाना से अमेरिका में मिला था, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन but before falling in love with her, he wanted to make sure that the girl was Japanese, because his father was of very conservative and traditional thought. He knew very well that if he tried to marry any other girl, his father would not allow him to do so. So here it is written, his father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hana, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, at an American professor's house. So here we are being told, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर सदाओ की हाना से मुलाकात कैसे हुई थी. तो डॉक्टर सदाओ की जो हाना से मुलाकात हुई थी, दैट वाज हेल्ड एक्चुअली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. वो अमेरिका में एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में हुई थी. Now who was this professor? This American professor was used to have a hostel, I think, and he had a kind of business of PGs, paying guests. That's why he used to keep the people there, foreign students he used to keep there. अपने जो foreign students को वो वहाँ पर accommodation और food available करवाया करता था. वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी. And the students, thou bored, had accepted this kindness. स्टूडेंट्स उससे हालांकि बोर हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लिया. सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट. दिस वाज द नेम ऑफ दैट प्रोफेसर. ही वाज प्रोफेसर हार्लीज हाउस. हार्ली उसका नाम था, प्रोफेसर. और सदाओ हाना से कभी कभी बात करते समय बताया करता था कि किस प्रकार से अगर वो एक दिन वो प्रोफेसर हार्ली के घर उस रात नहीं जाता तो वो उससे हाना से नहीं मिलता. The rooms were so small. He did not like that professor's house because क्योंकि उसका accommodation जो था वो बहुत small था. The food so bad, खाना बहुत बुरा था. The professor's wife so voluble. प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत बकवास करती थी, जो बहुत ज़्यादा बोलती थी. वॉल्यूबल कहते हैं टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलती थी. That's why he did not like the professor's accommodation. Yet he went and it brought a good fruit for him because he met Hana there.
एंड हैड ही नॉट गॉन देयर, अगर वो वहाँ नहीं जाता तो ही वुड नॉट हैव मेट हाना, वो हाना से नहीं मिलता, एंड दे वुड नॉट हैव गॉट मैरिड, और उनकी शादी भी नहीं होती. बट ही हैड गॉन देयर एंड फाउंड हाना a new student and had felt he would love her if it were at all possible. और उसने हाना को वहीं पहली बार देखा, and as soon as he saw her he fell in love with her. Now he felt her hand on his arm. ये वापस स्टोरी प्रेजेंट में आ गई है. अभी जो बीच में स्टोरी थी ये फ्लैशबैक में चल रही थी. They were recalling all the days how he met Hana. लेकिन अभी प्रेजेंट में है. He felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. तो अभी उसने अपने आप को हाना के काफ़ी करीब अपने आप को महसूस किया था. एंड दे हैड बीन मैरिड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से उनकी शादी हो रखी थी. बट yet they were in great love with each other. फिर भी उन दोनों को आपस में अभी भी एक दूसरे से प्यार था. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. उनकी जो शादी हुई थी अमेरिका में नहीं हुई थी. Heedlessly means without respect, बिना किसी तामझाम के नहीं हुई थी. After completing their work at school, they had come back to Japan. अपना काम ख़त्म करने के बाद में वो जापान आ गए थे, और जब उसके पापा ने उसको देखा तो उनकी मैरिज को जो है ओल्ड जापानीज़ वे में अरेंज किया गया. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, हालांकि सदाओ और हाना ने पहले ही इसके बारे में अपने फादर से बातचीत कर ली थी. बिफोर हैंड का मतलब होता है इन एडवांस. दे वर परफेक्टली हैप्पी. लाइफ बहुत एन्जॉयमेंटफुल थी उनकी. She laid her cheek against his arm. It was at this moment, so when they were roaming here and there outside their home and just recalling their old days and having good romantic moments, at the same time what happened? Both of them saw something black come out of the mist. उन दोनों को कोहरे से, मिस्ट से कुछ काली जैसी आकृति बाहर आती हुई दिखाई दे रही. You can see in the picture as well. In the picture also it's a black figure coming out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean. Flung up out of the ocean means thrown out of the ocean. उसे ocean से बाहर फेंका गया था. Flung it seemed to his feet by a breaker. He staggered a few steps. उसके पैरों से ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरह से घायल है. He staggered a few steps. उसने कुछ कदम वो चला. His body outlined against the mist. उसकी जो बॉडी जो थी वो मिस्ट के बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी. आउटलाइन बनने का मतलब है उसकी जो पूरी बॉडी की पहचान है उसकी बॉडी की आउटलाइन से दिखाई दे रही थी. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसकी जो आर्म्स थी उसके सिर के ऊपर थी. दिस शोज दैट ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम समवेयर. ये दिखा रहा था कि वो कहीं से बच के आया है. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. और फिर कर्ल्ड मिस्ट, ये मिस्ट जो है यहाँ स्मोक के लिए यूज़ किया गया. कर्ल का मतलब लहरों के रूप में जो स्मोक था उसने वापस उसे छुपा लिया. हु इज़ दैट? हाना क्राइड. कौन है ये? हाना चिल्लाई. शी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म. उसने सदाओ का हाथ छोड़ा. एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. और वरांडा की जो रेलिंग थी उसके ऊपर और झुके. नाउ दे सा हिम अगेन. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग. ये जो आदमी था अपने पैरों और अपने घुटनों के ऊपर क्रॉल कर रहा था, मीन्स रेंग रहा था. देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. तब उन्होंने देखा कि वो अचानक से नीचे गिर गया और वहीं पर लेट गया. अ फिशरमैन परहैप्स. तो दीज वर द स्पेकुलेशंस. दे स्टार्टेड टू स्पेकुलेट द थिंग्स कि कौन हो सकता है वो आदमी. पहला उनका स्पेकुलेशन था शायद कोई फिशरमैन है. वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से शायद बच के आया है. He ran quickly down the steps and behind him Hana came. वो immediately उस तरफ दौड़ा because he was wounded. Her white sleeves flying. और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई. उसकी जो white sleeves थी वो हवा में उड़ रही थी. जो उसने ऊपर गाउन पहना हुआ था और जो जैकेट पहनी हुई थी. A mile or two away on either side there were fishing villages. उन्हें मालूम था कि लगभग 1 मील या 2 मील दूर दोनों तरफ फिशिंग विलेजेस हैं. बट देयर वाज ओनली द बेयर एंड लॉनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स. लेकिन ये जो कोस्ट था ये बहुत ही चट्टानों से भरा हुआ था, बहुत ख़तरनाक था. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स. और
यहाँ से इस बीच से आगे की जो सर्फिंग थी, यानी समुद्र में जो जाना था, वो रॉक्स से भरा हुआ था, एंड इट कुड हैव इंजर्ड समबडी, तो ये किसी को भी घायल कर सकता था। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, कैसे ना कैसे करके ये आदमी वहाँ से आ गया था। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, टॉर्न का मतलब यहाँ पर वुंडेड से है, तो वो बुरी तरह से घायल होगा। इट वॉज देयर गैस, इट वॉज देयर स्पेकुलेशन। They saw when they came towards him that indeed it was so, and when they came near the body of the American, they found that really he was injured. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. और उसके चेहरे की एक तरफ या बॉडी की एक तरफ जो मिट्टी से सना हुआ था और जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। He is wounded, ये तो बुरी तरह से घायल है। सदाओ exclaimed, सदाओ ने अपनी पत्नी को बताया, he made haste to the man, मीन्स ही वेंट टू द मैन हरीडली, बहुत जल्दी जल्दी उस आदमी के पास में गया। हु ले मोशनलेस, वो मोशनलेस मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट था, वो हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा जो है मिट्टी में बुरी तरह से धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, और एक पुरानी सी कैप उसके सिर पर चिपकी हुई थी या फंसी हुई थी। सॉक्ड विद सी वाटर, जो समुद्र के पानी में भीगी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, उसके जो कपड़े थे दे आल्सो हैड गॉन वेट, वो भी गीले हो गए थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ उसी समय रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसी के पास खड़ी थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उन्होंने उस आदमी का सिर जो था वो घुमाया। दे सा द फेस, और चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना बोली मतलब धीरे से बोली, अ वाइट मैन, कि ये तो कोई वाइट मैन है। यस, इट वॉज ए वाइट मैन, इट वॉज ए वाइट मैन। द वेट cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. उसकी गीली की कैप जो थी नीचे गिर गई, और उसके जो बाल थे वो गीले थे, येलो हेयर थे, ब्लॉन्ड हेयर थे, और जो हेयर की पोजीशन थी उससे मालूम पड़ा था कि दे हैड नॉट बीन कट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि उसे लंबे समय से काटा नहीं गया। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और काफ़ी यंग लड़का लग रहा था, और उसका फेस काफ़ी टॉर्चर्ड था, मीन्स फेस पर बहुत सारे इंजरी के निशान थे। एंड हिज बियर्ड आल्सो वॉज ऑफ येलो कलर, मीन्स हिज बियर्ड आल्सो वॉज ऑफ ब्लॉन्ड कलर। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको कुछ पता नहीं था कि वो लोग उसके साथ में क्या कर रहे थे। नाउ सदाओ रिमेंबर द वुंड, एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, बिकॉज डॉक्टर सदाओ वॉज ए डॉक्टर। सो जैसे ही उसने बॉडी को हाथ लगाया, हिज एक्सपर्ट फिंगर्स बिगेन टू सर्च फॉर द वुंड, उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स ने वुंड को तलाशना शुरू कर दिया कि घाव कहाँ था। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, एंड एज सुन एज ही टच्ड द वुंड, जैसे उसने घाव को टच किया, ब्लड उसमें से निकल कर आने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, सदाओ सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, और उसकी लोअर बैक की में राइट साइड की तरफ उसने देखा कि एक बंदूक की गोली का जो निशान था, उसका जो घाव था वो रीओपन हो गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकन्ड विथ पाउडर, उसकी जो फ्लैश थी और उस पर जगह जगह गन पाउडर लगा हुआ था। समटाइम नॉट मैनी डेज अगो, बहुत अभी रिसेंट पास्ट में उसे ऐसा लगता था गन पाउडर से कि उसे गोली मारी गई है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसका बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं किया है। इट वॉज बैड चांस, और इसके चांस थे कि रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, कि चट्टानों ने उसके घाव को स्ट्रक किया था, यानी अटैक किया था, और उसकी स्थिति खराब थी। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, देखो कितना खून निकल रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेम वॉइस, सोलेम वॉइस मीन्स सीरियस वॉइस। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, जो फॉग था उस फॉग ने उनको पूरी तरह से छिपा लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, एंड इट वॉज द टाइम व्हेन नो वन वॉज कमिंग देयर, इस समय कोई नहीं आया करता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जितने भी मछुआरे थे घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स, चांस बीच कॉम्बर्स मीन्स, बीच कॉम्बर्स कहते हैं दोज पीपल हु कम ऑन बीच फॉर वॉकिंग, एंड चांस बीच कॉम्बर्स मीन्स दोज पीपल हु कम बाई चांस वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड। So they just wanted to confirm whether they were secure or not. They were completely screened by the mist. Mist में पूरी तरह से छुप चुके थे। फिशरमैन इस समय दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो चांस बीच कॉम्बर्स थे उनके भी आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई वाइट मैन यहाँ पड़ा हुआ है।
तो व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करें? दिस पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द डिलेमा ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड हाना. क्या वो क्या करें? इफ दे हेल्प हिम, इफ दे ट्रीट हिम, it would have been a cheating with the profession, with the country, but if they do not treat him, it would have been a cheating with their profession. And if they go with treatment, the police would arrest them and they would be called traitors. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could do to staunch the fearful bleeding. तो दिमाग में तो उसकी ये विचार चल रहा है कि अब हम क्या करें इस आदमी का, लेकिन उसके हाथ एज ए डॉक्टर वही काम कर रहे हैं जो एक डॉक्टर को करना चाहिए. वो उस फियरफुल ब्लीडिंग जो उसके घाव से हो रही है उसको रोकने का तरीका सोच रहा है कि कैसे उसे रोका जाए. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस. उसने समुद्र के पास में पाई जाने वाली जो मॉस यानी काई होती है, उस काई से, आपको पता ही है सी मॉस इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन, ये एक मेडिसिन के रूप में काम करती है, एंटीबायोटिक एलिमेंट के रूप में काम करती है. उसने उसे उस वुंड के ऊपर उसे ढक दिया. मीन्स एज ए डॉक्टर ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड हिज वर्क. एज ए डॉक्टर उसने अपना काम शुरू कर दिया था. बट एज ए सिटीजन ऑफ जापान ही वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू विद दैट. द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्ट्यूपर बट ही डिड नॉट अवेकन. उसके प्रेशर के कारण, स्ट्रेंथ के कारण, जिस घाव के ऊपर सी मॉस लगाई थी उसके कारण वो थोड़ा दर्द के मारे चिल्लाया लेकिन जागा नहीं. द बेस्ट थिंग वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी. सबसे अच्छी चीज़ जो होगी हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक देते हैं. दिस वॉज सेड बाई सदाओ. ये सदाओ ने कहा. एट वन साइड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग विच ही कैन डू एज ए डॉक्टर, बट एट अनदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि क्या करें. और ही हैज़ कम विद द सोल्यूशन. सोल्यूशन उसके पास में आया कि इसको उठाकर वापस फेंक देते हैं. नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर दैट मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स. नाउ द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड. ब्लीडिंग रुक चुकी थी और उसने अपने हाथों को साफ किया. यस, अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडीली. हाना आल्सो सपोर्टेड हिम. हाना ने भी उसको सपोर्ट किया कि दैट ओनली वुड बी वेरी गुड, दैट ओनली वुड बी करेक्ट कि हम उसे वापस समुद्र में फेंक देते हैं. बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन. दोनों बात तो कर रहे हैं उसको समुद्र में फेंकने की, लेकिन दोनों में से कोशिश कोई नहीं कर रहा है, इनिशिएट कोई नहीं कर रहा है. इट मीन्स टू से दे बोथ आर कन्फ्यूज्ड. दे डू नॉट एग्री विद देयर ओन वर्ड्स. वो अपने खुद के वर्ड्स से सहमत नहीं है. इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर हमने हमारे घर में एक वाइट मैन को शरण दी, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, लेकिन अगर उसे प्रिजनर के रूप में अगर हमने उसे दे दिया आर्मी को, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो बिल्कुल मारा जाएगा. सदाओ ने कहा बिकॉज ही वॉज एनिमी सोल्जर, तो ही इज़ लाइकली टू डाई. So the kindest thing would be to put him back into the sea. Now this time Hana also said कि फिर तो यही उचित रहेगा कि हम इसे उठाकर वापस सी में फेंक देते हैं. But neither of them moved. लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला. It means to say what they were saying, they themselves did not agree with that. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Repulsion कहते हैं hatred को. वे लगातार उसकी तरफ नफरत से ही देख रहे थे. Inert means motionless figure की तरफ, यानी this inert figure refers to the wounded American. What is he? Hana whispered. क्या है ये? Hana ने धीरे से पूछा. There is something about him that looks American, सदाओ ने कहा. ये मुझे अमेरिकन दिखता है. He took up the battered cap, और उसने फिर उस battered cap को, मतलब जो कटी फटी जो कैप थी उसको लिया. Yes, there almost gone was the faint lettering. फेंट मीन्स फीके फीके, लेटरिंग मीन्स अक्षर दिखाई दे रहे थे. अ सेलर, उसके ऊपर लिखा हुआ था अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. वो एक अमेरिकन वॉरशिप से था. ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, यानी वो यूएस नेवी से था. द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर. ये आदमी तो वॉर का प्रिजनर है.
ही हैज़ स्केप्ड, और जैसे जैसे बच के निकल के भाग आया है, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और इसीलिए इतना घायल है। इन द बैक, सदाओ एग्रीड, इसीलिए इसको बैक में यानी पीठ पर ज़्यादा चोट लगी, क्योंकि वो भागा है, उसके ऊपर गन से अटैक हुआ है, इसलिए पीठ पर ज़्यादा उसके ऊपर घाव के निशान। दे हेजिटेटेड, संकोच हुआ उनको, लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन, देन हाना केम फॉरवर्ड विथ फुल डिटर्मिनेशन, तब हाना आगे आई पूरे रेजोल्यूशन के साथ में, चलो आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हम उसे उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। उसने पूछा कि क्या हम इसे समुद्र में फेंक दें, क्या हम फेंक सकते हैं? इफ़ आई एम एबल आर यू, अगर मैं फेंक सकता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? सदाओ ने पूछा। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन अगर तुम खुद करना चाहो तो तुम कर सकते हो। इट मीन्स टू से दे वर सेइंग, वो कह रहे थे, लेकिन अंदर से उनका जो कॉन्शियस था दैट वाज नॉट अलाउइंग देम टू डू दैट। अंदर से जो उनकी ह्यूमैनिटी थी, वो ह्यूमैनिटी उन्हें वैसा करने से रोक रही थी। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ ने वापस हेजिटेशन दिखाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। सबसे अजीब बात यह है कि अगर ये आदमी बिल्कुल सही होता, वर होल का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, मैं पुलिस को बिना किसी डिफिकल्टी के दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी, all Americans are my enemy and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. Dr. Sadao wants to say that had he been a normal person, well person, he would not have hesitated anything. उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, he would have handed him over to the police, वो उसे पुलिस को दे देता। लेकिन but because he is wounded, लेकिन वो चूँकि wounded है, that's why he wants to help him. You also cannot throw him back to the sea, Hana said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. हम इसे समुद्र में वापस फेंक भी नहीं सकते because he is wounded and the humanity does not allow for that. So the only thing, one thing is possible, that is to take him back into the house. कि हम इसे ऐसा करते हैं, अपने घर ले चलते हैं. But the servants, Sadao inquired. But Sadao's concern was the servants. सदाओ का जो कंसर्न था वो था सर्वेंट्स, कि वो सर्वेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे जब उसे वो लेकर जाएंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम उन्हें बता देंगे, दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसे पुलिस को दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, और हमें इसे देना ही चाहिए सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, हम सब खतरे में आ जाएंगे। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर इस आदमी को हमने आर्मी को सुपुर्द नहीं किया तो व्हाट वर देयर प्लान्स, कि जाएंगे सर्वेंट्स को बता देंगे कि हम इसे पुलिस को दे देंगे। देन हाना इंसिस्टेड, हाना ने इस चीज़ के लिए इंसिस्ट किया कि हमें इसे पुलिस को देना ही होगा, क्योंकि ये POW है। POW मीन्स प्रिजनर ऑफ वार है, और अगर हमने नहीं दिया तो हमारे बच्चे, हमारी पोजीशन सब खतरे में आ जाएगी। Certainly, बिल्कुल सही, सदाओ एग्रीड। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं और कोई चीज़ करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, बस केवल इसका इलाज करूंगा और इसे वापस आर्मी को दे दूंगा। Thus agreed, together they lifted the man, दोनों ने उस आदमी को उठाया। He was very light, वो बिल्कुल हल्का था। Like a fowl, एक फाउल की तरह। एक फाउल एक बर्ड होता है, that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton. उसको भूखा मारा जाता है तब तक जब तक कि उसके केवल पंख और उसका कंकाल नहीं बचता। ये फाउल इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड जो जापान में खाया जाता है, और इसको खाने का एक अलग तरीका ही लोग अपनाते हैं। क्या करते हैं कि उसे लगभग भूखा मारते हैं पूरी तरीके से, ताकि वो भूखा रहे, उसके खाली पंख और स्केलेटन ही बचें, और फिर उसको वो मार के खा जाते हैं। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. उसे घर ले आए। The door opened into a passage, और फिर दरवाज़ा खुला। And down the passage they carried the man towards an empty bedroom. और passage यानी passage का मतलब गैलरी से वो उस आदमी को एक empty bedroom में ले गए। It had been the bedroom of Sadao's father. ये सदाओ के फादर का बेडरूम हुआ करता था, who is no more now, जो कि अब दुनिया में है नहीं। एंड सिंस हिज डेथ
इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनकी मौत के बाद में इस बेडरूम का किसी ने यूज़ नहीं किया था. दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को उस मैटेड फ्लोर के ऊपर लेटा दिया. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, और इस कमरे में सब कुछ जापानीज ही था उस बूढ़े आदमी यानी उसके फादर को खुश करने के लिए. सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा था. who'd never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. और ये जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे, ये अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने घर में किसी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे और किसी भी फॉरेन बेड के ऊपर नहीं सोए, यानी उन्होंने सब कुछ अपने ही जापान का बना हुआ यूज़ किया. हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स एंड स्लिट बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट. क्विल्ट कहते हैं बेडशीट को. हाना वॉल कबर्ड्स में की तरफ गई और वहाँ से एक बहुत नरम सी चादर निकाली. शी हेजिटेटेड, उसे थोड़ा संकोच हुआ. द क्विल्ट वॉज टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट. सॉफ्ट क्विल्ट यानी नरम सी चादर को लेकर बाहर आई. एंड शी हेजिटेटेड, थोड़ा सा उसे संकोच भी हुआ था. वाई वॉज शी हेजिटेटिंग, उसे संकोच क्यों हुआ था? बिकॉज द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि वो जो क्विल्ट थी वो फ्लावर्ड सिल्क से कवर्ड थी. मीन्स इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव क्विल्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव चादर थी. ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. वो कितना गंदा है. अब वो गंदा उस समय वो गंदा नहीं है, बल्कि उसकी जो चादर है वो कितनी साफ़ है. दैट्स वाई शी इज़ हेजिटेटिंग. यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड. सदाओ एग्रीड. इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. सदाओ सेड कि उसको पहले ऐसा करते हैं, वॉश कर देते हैं. अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं उसे थोड़ा वॉश कर देता हूँ. आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड. वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर. मैं नहीं चाहती कि तुम उसको हाथ भी लगाओ. दिस वॉज सेड बाय हाना. हमें सर्वेंट्स को बताना चाहिए कि वो यहाँ है. आई विल टेल यूमी नाउ. मैं यूमी को बताती हूँ. यूमी इज़ द नेम ऑफ द सर्वेंट. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम. वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी और यहाँ पर उसे वॉश कर सकती. सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट. सदाओ ने एक क्षण के लिए सोचा. लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा ही करो. ही एग्रीड. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ इसके बारे में. बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स. ही वांटेड टू गो फ्रॉम देयर. लेकिन उस आदमी के जो अनकॉन्शियस फेस, यानी अमेरिकन का जो अनकॉन्शियस फेस था, उसका जो चेहरे का जो पीलापन था, उसके कारण उसे पहले झुकना पड़ा. ही वांटेड टू सी वेदर ही वॉज ओके और नॉट. वो उसे देखना चाहता था कि वो सही है कि नहीं. स्टूप मीन्स झुकना पड़ा. एंड फील हिज पल्स, और उसकी पल्स को उसने फील किया. इट वॉज फेंट. उसकी पल्स थोड़ी सी कम चल रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन फिर भी वो थी. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. अभी भी हार्ट जिंदा था. He will die unless he is operated on. वो मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, सदाओ ने कहा. The question is whether he will not die anyway. लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो वैसे भी नहीं मर जाएगा, यानी उसका ट्रीटमेंट किया. ट्रीटमेंट करने के बाद में then they have to hand him over to army. उसे वापस आर्मी को देना पड़ेगा, तब भी मर जाएगा. ऐसे मर जाएगा या वैसे मर जाएगा, दोनों तरफ से मरेगा वो तो. हाना क्राइड आउट इन फियर. हाना डर के मारे चिल्लाई. डोंट ट्राई टू सेव हिम. व्हाट इफ़ ही शुड लिव. उसे बचाने की कोशिश मत करो अगर वो कहीं जिंदा रह गया तो. व्हाट इफ़ ही शुड डाई. लेकिन अगर वो मर गया तो. सदाओ ने रिप्लाई किया. ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. अभी भी दोनों हस्बैंड वाइफ सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. कर वो सब कुछ रहे हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन सोच ये रहे हैं कि काश ये आदमी जिंदा ना रहे. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. वाइटलिटी मीन्स स्टेमिना, स्ट्रेंथ. डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि ये आदमी जो है, इस आदमी की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, अदरवाइज वो मर गया होता. बट देन ही वॉज वेरी यंग. लेकिन कितना यंग है. Perhaps not yet 25. शायद अभी 25 साल का ही है. You mean die from the operation? Hana asked. Yes, Sadao said. Hana considered this doubtfully. You mean die from the operation? क्या वो ऑपरेशन के बाद भी मर सकता है? हाना ने पूछा.
डॉक्टर सदाव ने उसका आंसर दिया, यस, बिल्कुल मर सकता है। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने थोड़ा इसको डाउटफुली कंसिडर किया, बिकॉज शी न्यू वेरी वेल कि सदाव तो बहुत अच्छा फेमस सर्जन है और उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, इस आदमी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि इसे वॉश करो। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और वो उसी समय कमरे के बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे हाना आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, उसे उस वाइट मैन से इतना डर लग रहा था कि वो उसके साथ में अकेले कमरे में रुकना भी नहीं चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तब से उसने ये पहला अमेरिकन देखा है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर, हियर ही वॉज हर एनिमी, अ मीनेस लिविंग और डेड। तो यहाँ पर यह आदमी उसके लिए खतरा है। मीनेस मीन्स खतरा, लिविंग और डेड चाहे जिंदा है चाहे मरा हुआ है। शी टर्न टू द नर्सरी, वो नर्सरी की तरफ गई जहाँ यूमी उसके बच्चों की देखभाल कर रही थी। एंड कॉल यूमी, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन जैसे उसने यूमी को बुलाया बच्चों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, और उसे जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, थोड़ा उन्हें पैम्परिंग करनी पड़ी। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, बेबी बॉय के साथ में उसे खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि अब 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। तो वाइल पैम्परिंग हर चाइल्ड, अपने बच्चे को प्यार करते हुए उसने यूमी को बुलाया। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी ने कहा कि मैं बच्चे को सुला देती हूँ। ही इज़ रेडी, वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम। वो यूमी के साथ बेडरूम में गई, जो कि नर्सरी के पास ही था, और बच्चे के साथ वहीं खड़ी रही, जबकि यूमी ने क्विल्ट्स यानी चादरें बिछाई फ्लोर पर और बच्चे को उसके ऊपर लेटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब हाना किचन की तरफ गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, वहाँ जो दो नौकर थे, यानी कुल मिलाकर 3 नौकर हुए, यूमी के अलावा 2 नौकर और हैं, वो बुरी तरह से डरे हुए थे। दे वर वेरी फ्राइटन्ड, वो बुरी किस चीज़ पर डरे हुए थे? द ओल्ड गार्डनर, जो बूढ़ा गार्डनर था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है ही वॉज फियरफुल विद एक्साइटमेंट, वो बुरी तरह से डरा हुआ था एक्साइटमेंट के कारण, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कुछ बताया था। क्या बताया था? अमेरिकन के बारे में बताया था। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, उनका कहना ये था। अब ये दिखाता है कि दीज सर्वेंट्स वर ऑफ ट्रेडिशनल थॉट्स एंड कंजर्वेटिव थॉट्स, कि ये जितने भी नौकर थे ये कंजर्वेटिव थॉट्स के थे। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, यानी हमारे जो मालिक हैं उनको इस वाइट मैन के घावों को हील नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, उसने हाना को कहा, द वाइट मैन ऑट टू डाई, दिस वाइट मैन, ये जो वाइट मैन है इसको मरना ही होगा। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले उसे गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसे पकड़ा। एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और अपने रॉक्स से इसको घायल कर दिया। इफ़ द मास्टर हील्स, अगर मालिक ने इसको बचाने की कोशिश की, व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, जो गन ने किया और समुद्र ने किया घाव, जो गन ने और समुद्र ने जो घाव किया, अगर उनको हील करने की कोशिश की, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो ये गन और सी हमारे से बदला लेंगे। तो कितनी ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन कहते हैं इसको। तो वो इसलिए डरे हुए थे। तो अमेरिकन से नहीं डरे हुए थे, वो डरे हुए थे अपने सुपरस्टिशंस के कारण, कि इस आदमी को गन ने भी मारने की कोशिश की, इस आदमी को समुद्र ने भी मारने की कोशिश की, और अगर उसको इनके मास्टर ने अगर बचा लिया तो ये गन और सी दोनों मिलकर इनसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टियसली पोलाइटली, ठीक है मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटन्ड, लेकिन वो तो खुद डरी हुई थी। आल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, हालांकि वो उस बूढ़े आदमी की तरह सुपरस्टिशियस तो नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, लेकिन उसका कंसर्न दूसरा था। तो इसका मतलब सर्वेंट्स के भी अपने अपने कारण थे। गार्डनर इसलिए डरा हुआ था, जो आपको बताया सुपरस्टिशन के कारण।
लेकिन हाना इसलिए डरी हुई थी कि क्या हमें एक दुश्मन की सहायता करनी चाहिए. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. Okay, ये यहाँ पर it is being talked about हाना. हाना के बारे में बात की जा रही है, सर्वेंट्स के बारे में नहीं. सर्वेंट्स तो अपने सुपरस्टिशंस के कारण डरे हुए थे, लेकिन हाना भी डरी हुई थी. हाना इसलिए डरी हुई थी कि क्या उन्हें जो है दुश्मन की हेल्प करनी चाहिए. Nevertheless, she told Yumi, उसने यूमी को कहा टू फैच द हॉट वाटर, गर्म पानी लाने के लिए, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उसे वहाँ लाने के लिए कहा जहाँ वाइट मैन पड़ा हुआ था. शी वेंट अहेड, वो आगे गई, एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, और उसने जो कमरे के पार्टीशंस थे उनको खिसकाया. पार्टीशन मीन्स एक रूम को ही दो भागों में बांटने के लिए कुछ बीच में कवर्स लगा दिए जाते हैं. सो दाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ वहाँ पर नहीं था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी ने अपनी वुडन बकेट वहाँ पर रखी. देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर उसने उस वाइट मैन को देखा. व्हेन शी सा हिम, जब उसने उसे देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस, उसके जो मोटे होंठ थे वो जिद्दीपन के कारण फोल्ड हो गए. स्टबर्ननेस मीन्स डिटर्मिनेशन के कारण. आई हैव नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन मीन्स उसने कुछ डिसीजन ले लिया था रिवोल्ट करने का, विद्रोह करने का, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है. एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और इतने गंदे वाइट मैन को तो मैं बिल्कुल भी वॉश नहीं करूँगी. हाना क्राइड एट हर सीवियरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू. लेकिन हाना उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाई. जब यूमी ने मना कर दिया तो हाना उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाई कि तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारी मालकिन तुमसे कहती है. देयर वॉज सो फियर्स a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. उस यूमी के चेहरे पर इतना ज़बरदस्त विरोध था कि हाना ने उसे महसूस कर लिया था. एंड शी आल्सो वॉज अफ्रेड, और वो भी डर गई थी. आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वो डर किस चीज़ से गई थी कि कहीं इन नौकरों ने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो. वेरी वेल, ठीक है, शी सेड विद डिग्निटी, उसने पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहा, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम ये चाहते हैं कि केवल उसकी चेतना लौट के आ जाए, उसकी बेहोशी ख़त्म हो जाए, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम उसे प्रिजनर के रूप में वापस आर्मी को हैंड ओवर कर सकें. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, बट यूमी वॉज डिटरमिन्ड. यूमी ने तो अपना इरादा फिक्स कर लिया था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक पुअर पर्सन हूँ और ये मेरा बिजनेस नहीं, ये मेरा काम नहीं है. देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर वर्क. उसके बाद में हाना ने कहा कि ठीक है, तुम अपने काम पे लौट जाओ, अपने काम की तरफ चले जाओ. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसी समय यूमी ने कमरा छोड़ दिया. बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन उसके कारण हाना उस वाइट मैन के साथ में अकेली रह गई. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, वो भी डर रही थी. हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, अगर उसे यूमी के ऊपर गुस्सा नहीं होता, लेकिन गुस्से डर के ऊपर इस समय गुस्सा प्रभावी था. उसे बहुत गुस्सा आ रहा था यूमी के कारण, इसलिए वो अपना डर वगैरह सब भूल गई. स्टूपिड यूमी, यूमी कितनी स्टूपिड है. शी मटर्ड फियर्सली, उसने मटर्ड का मतलब बड़बड़ाना, फियर्सली मीन्स खतरनाक तरीके से. इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, है क्या वो, एक इंसान ही तो है. एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल हेल्पलेस इंसान है. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड. तो अपनी सुपीरियरिटी के कन्विक्शन में, यानी उसे लगा कि वो उससे सुपीरियर है, क्योंकि उसने उसको वॉश करने से मना कर दिया था, लेकिन वो इंसान है तो इंसान के नाते उसकी हेल्प कर रही है. लेकिन शी बेंट इम्पल्सिवली, लेकिन फिर भी उसे उस नफ़रत तो थी उस आदमी से. एंड अनटाइड, और खोल दिए उसे नॉटेड रग्स. नॉटेड रग्स का मतलब जो एक दूसरे से गुथे हुए जो कपड़े के टुकड़े थे उनको खोला, जिनके कारण वाइट मैन कवर्ड था. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. उसको वॉश करना शुरू कर दिया था उसने उस हॉट वाटर से. The man's skin though rough with exposure, उस आदमी की जो स्किन थी हालांकि रफ थी सन एक्सपोजर के कारण, लेकिन फिर भी फाइन टेक्सचर की थी, बहुत अच्छा टेक्सचर था उसकी स्किन का.
एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और वो बहुत सुंदर रहा होगा, हैंडसम रहा होगा जब वो बच्चा था. दिस वाज बीइंग थॉट बाय हाना. हाना इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी. The next part of the lesson we shall be doing in the second part of this video. Thank you.